محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اس کائنات کا رب العالمین ہے، اور تمام تسبیحات اور تکبیرات اسی کے سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ہر مخلوق کو روزی روٹی دینے والا ہے، وہی اپنی نعمتوں سے ہر مخلوق کو مالا مال کرنے والا ہے، تمام عیبوں سے وہ پاک ہے، وہ مخلوق کے جیسا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اسی کے حکم سے ہر کام کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کسی طرح کے عیب نہیں ہے، اور وہ اتنا قدرت رکھنے والا ہے کہ نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اس کے برابر کی کوئی شے نہیں ہے۔ اس مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے بعد بے انتہا درود اور سلام کا نزول ہو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتیں، جن کی قربانیاں اور جن کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دین کو قائم کیا ہے۔ محترم حضرات، آج میرا جمعہ کا موضوع ہے آپ کے سامنے معاشرے کے حالات۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کے حالات کیسے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے حالات کیسے ہیں، اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بھی کیسے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مساجدوں کے اور مدارسوں کے حالات بھی کیسے ہیں۔ محترم حضرات، پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، پورے روئے زمین میں حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے، ہم کماتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، عیاشی کرتے رہیں گے، دن بھر کے بیپاروں میں لگے رہیں گے، بس ہمارا کام خالی کھانا پینا سونا اگر رہے گا تو یاد رکھ لیجئے ہم کبھی بھی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار نہیں سکتے، اور معاشرے کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھروں سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب مکے میں پیدا ہوئے تو اس وقت وہاں کے حالات کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے وہاں کا معاشرہ بگڑا ہوا تھا، نہ عورتوں کی قدر کرتے تھے، نہ عورتوں کی عزت کرتے تھے، نہ بھائی کی قدر کرتے تھے، نہ والدین کی عزت کرتے تھے، نہ تجارت کا کوئی حلال کے بارے میں فکر تھی، اور یہ کہ اللہ کی عبادت بھی برابر سے نہیں کرتے تھے۔ پورا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ پورے معاشرے کی حالت، پورے مکے کی حالت ویسے ہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے
یہ ساری چیزیں وہاں پر دیکھی جاتی تھی. سود کا بیپار ہوتا تھا، حرام کمائی کی جاتی تھی، حرام کا کھانا کھایا جاتا تھا، عورت کی عزت لوٹی جاتی تھی. اسلام کا ماحول نہیں تھا معاشرے میں. وہاں مکے کے معاشرے میں مکے کے حالت آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا، وہاں کے معاشرے کو سدھارنے کے واسطے اللہ نے نبی کو پیدا کیا. وہاں کوئی پتھر کی عبادت کرتا تھا، جھاڑوں کی عبادت کرتا تھا، ستاروں کی عبادت کرتا تھا، بت پرستی عام تھی. مکے میں 360 بتوں کو رکھ کر پوجا پاٹ کیا جاتا تھا. یہ ساری چیزوں کو ہٹانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نبی بنایا، نبوت کا درجہ دیا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نبوت کا درجہ دینے کے بعد، نبی پر قرآن کو اتارنے کے بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسے ہی رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دیا کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو، بگڑے ہوئے معاشرے کو، بگڑے ہوئے سماج کو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم لوگوں کو سدھارنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، نبی بنے، تو وہاں پر سب سے پہلے توحید کا کام کیا. آج ہمارے اندر معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا رواج نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر غیروں کا طریقہ آ گیا، ہمارے گھروں کے اندر غیروں کے مذہبوں کے طریقے آ گئے، ہمارے رسم و رواج غیروں کے آ گئے. یہ سارے ماحول بگڑنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم دین جانتے ہوا، ہم اسلام کے طریقے جانتے ہوئے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، ہمیں نبی کے حدیثوں کو جانتے ہوئے، ہمیں نبی کے طریقوں کو جانتے ہوئے، ہمیں ہماری زندگی میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دے کر سمجھایا، بت پرستی کرنے والے کو اللہ کا کلمہ پڑھ کر سمجھایا، پوجا پاٹ کرنے والے کو آخرت یاد دلا کر ان کو دین کے راستے میں لائے، اور ایسے ویسے حرکتیں کرنے والوں کو بچایا، اور جہنم کے راستے میں چلنے والوں کو دین کا راستہ بتایا. عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، عورت کی قدر ان لوگوں کے سامنے رکھے. وراثت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لوٹ مار تھا مکے کے اندر، وراثت کیا چیز ہوتی ہے سامنے رکھا. جب جا کر وہاں پر معاشرہ سدھرتا گیا، معاشرہ سدھرتا گیا، اسلامی ماحول بنتا گیا، اسلامی رواج بنتا گیا. محترم حضرات، اپنے آپ کو آج مسلمان بولنے والے، اپنے آپ کو آج نبی کا امتی بولنے والے، اپنے آپ کو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن اس کے زندگی میں وہ کلمہ نہیں، اس کے زندگی میں وہ کلمہ نہیں، اس کے زندگی میں وہ کلمے کی قدر نہیں، اس کے زندگی میں ایمان ہے لیکن ایمان کی حفاظت نہیں. اسی لیے آج ماحول اور معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. محترم حضرات، کب تو بھی ہمیں جائزہ لیے، کب تو بھی ہمیں اس کے بارے میں فکر کرے. ارے میں مسلمان ہوں، میرا گھر کیسا جا رہا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میرا بیٹا مسلمان ہے، لیکن میرا بیٹا کس طریقے پر چل رہا ہے؟ میں ایک نبی کا امتی بولنے والا، کیا میرا گھر کا ماحول نبی کے حساب سے ہے یا نہیں؟ اسلام کے حساب سے ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کے طریقے کے حساب سے چلتے ہیں یا نہیں؟ کیا کبھی ہم نے جائزہ لیا؟ ہم بیپاروں کے بارے میں حسابیں کرتے ہیں، دوسرے چیزوں کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں، اس کے اور اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گھر کو سدھارنے کے بارے میں فکر کیے نہیں. محترم حضرات، آج معاشرہ نوجوان نسلوں کے تعلق سے بگڑ رہا ہے، نوجوانوں کے تعلق سے بگڑ رہا ہے، موبائلوں کے تعلق سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، عورتوں کے تعلق سے معاشرہ بگڑ رہا ہے، لڑکیوں کے بارے میں معاشرہ بگڑ رہا ہے. کیوں بولو؟ اس لیے کہ یہ معاشرے کو سدھارنے کی فکر ہم نہیں رکھ رہے ہیں. جتنی فکر اللہ کے نبی نے رکھا، جتنی فکر صحابہ نے رکھا، جتنی دین کی فکر کیا ہے ان صحابہ کے اندر تھی، جتنے ایمان کی تڑپ حفاظت ان کے اندر تھی، آج ہمارے اندر نہ رہی. اسی لیے آج معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے. میرے بھائیوں، کبھی ہمیں اس کے بارے میں فکر نہیں کیا.
कभी भी दुनिया के बारे में फिक्र करते रहे, व्यापारों के बारे में फिक्र करते रहे, बीवी बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्र करते रहे, क्या कभी दिन के बारे में फिक्र करे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की फिक्र नहीं करते थे, अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं करते थे, अपने बच्चों अपने बीवियों की फिक्र नहीं करते थे। फिक्र करते तो अपनी उम्मत की फिक्र करते थे। अपनी जिंदगी में होते हुए, दुनिया के अंदर होते हुए मेरी उम्मत कैसे चलेगी ये फिक्र करते थे, मेरी उम्मत किस रास्ते पर चलेगी ये फिक्र करते थे, मेरे उम्मत का एक आदमी भी जहन्नम के रास्ते में नहीं जाना, ये नबी की फिक्र थी। आज हमारे अंदर वो फिक्र है? चलो तुम्हें दूसरों की फिक्र की जरूरत नहीं, कम से कम अपने बच्चों की तो भी फिक्र है। क्या अपने बच्चियों की फिक्र है? क्या अपने बीवी की फिक्र है? क्या अपने घर की फिक्र है कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, मैं उसको कैसा सुधारूं? मेरी बच्ची गलत तरीके पर जा रही है, मैं उसे कैसा समझाऊं? मेरी बीवी पर्दा नहीं करती, उसे पर्दे के बारे में समझाऊं? मेरी बीवी नमाजी नहीं है, मैं उसको नमाजी बनाऊं? क्या कभी ऐसा इस्लामी माहौल बनाने की फिक्र करते हैं हम लोग? नहीं। आज ये मुआशिरा क्यों बिगड़ रहा है, वो उसके अहम मकसद हम लोग हैं। मुआशिरा बिगड़ने का सबसे बड़ा अहम मकसद हम लोग हैं, हम मुसलमान हैं। हम जानते हुआ भी हमें इस्लाम के तरीके पर सही नहीं चल रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, गौर फिक्र करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं कुरान में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझाते हैं हदीसों के अंदर। जो खुतबे में मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर। मैं तुम सबसे भी ज्यादा तुमको चुन लिया हूं, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो दिन का काम करते हैं, नेक का काम करते हैं, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हैं, वतनहौना अनिल मुनकर, लोगों को बुराइयों से रोकते हैं, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तब ये सब लोग कामयाब होने वाले हैं। क्या हम कामयाबी की जिंदगी गुजारते हैं? क्या हम बिगड़े हुए लोगों को दिन के रास्ते में बुलाते हैं? हमें अपने आंखों से देखती हैं कि वो गलत करता है, कभी उसको एक बात तो भी समझाए नहीं। कैसे सुधरेंगे वो लोग? हमें मालूम है अल्लाह के बारे में, उसको मालूम नहीं अल्लाह के बारे में, हम जानते हुआ भी उसको अल्लाह के बारे में नहीं समझाए, उसको कैसे मालूम होगा? उसे शिर्क से कैसे बचाएंगे? उसे बिदअत से कैसे बचाएंगे? उसे कुफ्र के रास्ते से कैसे बचाएंगे? लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तुम अपने माहौल को सुधारना है तो तौहीद का काम करो, तुम्हें अपने मुआशिरों को सुधारना है तो अच्छा काम करो, नेक काम करो, लोगों को बुराइयों से रोको, तब जाकर तुम कामयाब बनोगे। कामयाबी अल्लाह ताला किसके हाथ में रखा? वो हमारे हाथ में रखा, लेकिन उसके पीछे एक चीज रखा है, लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ। आज हम नहीं बुला रहे हैं मेरे भाइयों, लोगों को नेकी की तरफ नहीं बुलाते हैं। और नेक काम करा तो करा, नहीं तो नहीं, उन अल्लाह को जवाब दे लेता। मैं नमाज पढ़ को मैं जन्नत में गया तो बस है, मैं रोजा रख लिया मेरे को सवाब मिला तो बस है, मैं हज कर लिया अल्लाह मेरे पैदा होने से लेकर मरते दम के सारे गुनाह माफ कर दिया तो मैं बस है। आज हमारी ये फिक्र है। माहौल को सुधारेंगे कैसे हम लोग? जब दीन का काम नहीं करेंगे, जब एक दूसरे को नमाज की दावत नहीं देंगे, जब एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकेंगे, गलत काम करने वाले को गलती है बोलकर नहीं बोलेंगे, तो वो आदमी गलत काम करने से कैसे रुकेगा? माहौल बिगड़ता है कब? मुआशिरा बिगड़ता है कब? जब हक जानने वाले उनके सामने हक बात नहीं पेश करेंगे, तब मुआशिरा बिगड़ जाता है, तब मुआशिरा बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं। देखते देखते क्या है, सारे के सारे नुकसान के हालत में आ जाते हैं। आज हमारे अंदर ये चीज की कमी है। तौहीद की दावत देना, दीन की दावत देना, दीन के रास्ते में लोगों को लाना, लोगों को नमाजी बनाना, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके उनको समझाना, ये चीज को हमने छोड़ दिया। अल्लाह ताला इसीलिए हमारे माहौल को बिगाड़ रहा है, हम उसका जरिया बने, अल्लाह ताला हमें जलील कर रहा है।
पूरे दुनिया के मुसलमान आज जलील हैं, पूरे दुनिया के मुसलमान आज परेशान है। जहां भी अल्लाह के तरफ से अजाबें आती, जहां भी तूफान आता, जहां भी सैलाब आता, जहां भी कोई जलजला आता, आप देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान ही नुकसान हो रहा है। अल्लाह के अजाब में भी मुसलमान ही मुब्तिला हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश में मुसलमान ही हो रहा है। वजह क्या? हमारे से कुछ गलती हो रही है, हमारे से कुछ कमी पेशी हो रही है, हमारे से कुछ गलत काम हो रहा है। इस सरजमीन पर हम कोई चीज भूल बैठे हैं। जो चीज अल्लाह के तरफ से आई थी उसको हमने भुला दिया। जो जिम्मेदारी अल्लाह के नबी ने दुनिया में देकर वो दुनिया से चले गए, वो नबी की जिम्मेदारी को आज हमने भुलाया। इसीलिए आज मुसलमान कोने कोने में जलील है और अपने घर के लोग खुद क्या है, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। वजह क्या? हम खुद हमारे माहौल को हम बिगाड़ रहे हैं, हमारे मुआशिरे को तबाह खुद करने के, बर्बादी करने के हम खुद उसके अहम मकसद बन रहे हैं। मोहतरम हजरात, आज हम क्या है, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, हमारे पड़ोसी के बच्चे, हमारे ये जो नस्ल है, आज देख लीजिए ज्यादातर नुकसान में है। उनको दीन के बारे में मालूम नहीं, उनको कुरान के बारे में मालूम नहीं, उनको नमाज का तरीका मालूम नहीं, उनको नबी का नाम तक मालूम नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नबी का नाम तक आज ऐसे मुसलमानों के बच्चे हैं जिनको नबी का नाम तक मालूम नहीं। तुम्हारे नबी कौन बोले तो हमारे नबी कौन बोलते हैं। ये माहौल है हमारा, ये हालत है हमारे मुआशिरे की, ये हालत हम देख रहे हैं। आज स्कूलों में देखो, कॉलेजों में देखो, यूनिवर्सिटीज में देखो, कहीं पर भी आप देख लीजिए हमारे नौजवान नस्लों की बर्बादी और बिगाड़ क्या है हो रही है। कम से कम घर में तो भी दिन का काम चलेगा, कम से कम घर में तो तालीमात होते रहेंगे, कम से कम अपने पड़ोसियों के दरमियान कभी इज्तिमात होते रहेंगे। रोजाना रात में सोने से पहले कभी एक हदीस की तालीम घरों में चलती रहेगी। रोजाना घर में बैठकर कुरान के एक सूरत का तर्जुमा पढ़ते रहेंगे। तब हमारे बच्चों में दीनी तालीम पैदा होगी, हमारे बच्चे दीन के बेदार बनेंगे, हमारे यही नौजवान बच्चे मस्जिदों की खिदमत करने वाले बनेंगे, हमारे यही नौजवान बच्चे गैरों को दीन की दावत देने वाले बनेंगे, हमारे यही नौजवान मुसलमान बच्चे दीन के रास्ते में चलने वाले बनेंगे। लेकिन आज हमारे ही बच्चे दीन के नुकसान बन बैठे हैं। अल्लाह अकबर, दीन के नुकसान बन बैठे हैं। सही तालीम नहीं, सही इल्म नहीं, सही मालूमात नहीं, सही तरीका उनको मालूम नहीं, जैसा चाहे वैसा दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि हमें अपने हाथों से खुद अपने घर के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। हमको देखकर मुआशिरा बिगड़ रहा है। एक मुसलमान को देखकर दूसरा सुधरना, एक मुसलमान को देखकर दूसरा सुधरना, एक मुसलमान के घर को देखकर एक बाजू वाले के गैर का घर सुधरना, एक मुसलमान का घर इतना पाकीज़ा होना कि बाजू वाले का घर भी हमारे घर को देखकर वो भी अपने घर को साफ सुथरा रखना। ऐसा माहौल जाने के बजाय आज हमारे घरों को देखकर दूसरों के घरें बिगड़ रहे हैं। आज मुसलमानों को देखकर दूसरा बिगड़ रहा है। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगड़े हुए मुआशिरे को, बिगड़े हुए हालतों को कितना फिक्र करते हुए उनको सुधार कर, समझा कर दीन के तरफ लाए। आज वो फिक्र हमारे अंदर नहीं है। हमारे ईमान की कमजोरी है, हमारे ईमान की हिफाजत खुद हम नहीं कर रहे हैं, हमारे नेक अमाल की हिफाजत हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम खुद बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा घर खुद बिगड़ते जा रहा है, हमारे बच्चे खुद बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज माहौल भी क्या है, बिगड़ता जा रहा है। कोई भी वालिदैन ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं समझता हूं कि 80% ऐसे हमारे बच्चे हैं कि बाप को जवाब देते हैं, मां बाप को जवाब देते हैं। क्यों? हमने नहीं बता लिया, हमने अपने औलाद को तरबियत नहीं दी लिए, हमने अपने औलाद को सही तरीके से उनको समझा लिए नहीं। इसीलिए आज वही औलाद जिनके लिए तुम मोहब्बत करते हो, वही औलाद जिनके पीछे तुम जिंदगी लगाते हो,
वही बच्चे, चाहे बच्ची भी क्यों ना हो, जिनके पीछे दिन रात कुर्बानियां कर कर क्या है तुम मेहनत करते हो, आज तुम्हारा लड़का तुम्हारे बारे में इज्जत नहीं कर रहा है, आज तुम्हारी ही बेटी तुम्हारी बेइज्जती करके तेरे घर से निकल रही है, माँ बाप की कदर भी नहीं करती। आज माहौल वैसा बन चुका है मेरे इस्लामी भाई और बहनों। फिक्र करने की बात है, हम लोग दीन की फिक्र करना, माहौल की फिक्र करना, मुआशरे की फिक्र करना, घर की फिक्र करना, हालतों का जायजा लेना, क्या चल रहा है, क्या मुआशरे में चल रहा है, हालतें कैसे आ रहे हैं, दिन ब दिन क्या है हालत बिगड़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या करना चाहिए, इसका कैसा जायजा लेना चाहिए, हमें इसके बारे में फिक्र करना चाहिए। हर चीज हमें कुरान और हदीस में मिलती है। ऐसे हालत नबी के सामने भी आए, ऐसे हालत नबी के जिंदगियों में भी आए, लेकिन नबी ने बता के दिखाया, नबी ने बता के दिखाए, नबी ने समझा के दिखाए कि अगर ऐसे हालात तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, तुम्हें ऐसा फेस करना, ऐसे हालतों को तुम ऐसा बदलाना, ऐसे मसाइल को तुम्हें ऐसा हल करना, ऐसे लोगों को तुम्हें ऐसा हिकमत से समझाना, दिन का काम ऐसा करना। ये सारी चीजें हमें नबी के जिंदगी से मिलते हैं। लेकिन क्या हमें नबी की जिंदगी को अमल करने में तैयार हैं? क्या नबी के जिंदगी को सुनने, पढ़ने, समझने, अमल करने की फिक्र में है? नहीं। बस हमारी जिंदगी कैसी बन गई, हमारी जिंदगी रोजाना रोजाना दुनिया 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 के पीछे हो गई, दुनिया की फिक्र में हो गई हमारी जिंदगी। कौन सुधारना? ये बिगड़ते हुए हालतों को देखकर हमारे सुधरे हुए बच्चे, हमारे सुधरे हुए नौजवान भी बिगड़ रहे हैं। कौन सुधारना, कौन समझाना? इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने माहौल को सुधारना है तो सबसे पहले अपने बच्चों में दीनी तरबियत लाएं, अपने बच्चों में दीनी बेदारी लाए, अपने घर के अंदर दीनी तालीमात लाए, अपने घरों के अंदर कुरान की आवाज आए, अपने घरों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनका जिक्र, उनके वाकयात, उनके जो जिंदगी सीरत है वो रोजाना घरों के अंदर, अपने माहौल के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर ये तालीम होते रहेंगे तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता सुधरता सुधरता रहेगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे मक्के में, कौन मुसलमान था? कौन मुसलमान था? अल्लाह के नबी फिक्र करे, दिन के बारे में समझाए, अल्लाह के बारे में फिक्र करे, अल्लाह के दिन की दावत उनको दिए। अबू बकर इस्लाम लाए, उमर दुश्मन बन के बैठे थे, अल्लाह से दुआ करे, उमर इस्लाम ले आए, औरतों में खदीजा इस्लाम ले आई, बच्चों में हजरत अली इस्लाम ले आए। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? इस्लामी माहौल बनता गया, बिगड़ा हुआ मुआशिरा इस्लामी माहौल बनता गया, इस्लामी मुआशिरा बनता गया, सुधरता गया। आज जाकर क्या है, पूरी दुनिया के अंदर इतने सारे मुसलमान, करोड़ों करोड़ों के मुसलमान क्या है पैदा हुए, करोड़ों के मुसलमान इस्लाम में दाखिल होकर, कायम होकर दिन के दावतें देते रहे। मोहतरम हजरात, ये दिन का काम चुपके ऐसा ही नहीं होता। मुआशिरे को सुधारना बोले तो चुपके नहीं होता, बहुत फिक्र करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियां करना पड़ता है, एक दूसरे को नेकी की दावत देना पड़ता है, चाहे सामने वाला नाराज हो या नाराज हो, कुछ भी हो जाए, मेरा काम है उसे हक बताना, मेरा काम है उसे रसूल की बात बताना, मेरा काम है उसे अल्लाह का बात बताना। अगर ऐसा फिक्र हम करेंगे तो हम अपने आप को भी, अपने घर के माहौल को भी और मुआशिरे को भी सुधारने वाले बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। क्या फरमाते हैं? ईमान वालो, सबसे पहले तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। बोले अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ, सबसे पहले अपने आप को बचाओ जहन्नम के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, उसके तकलीफों से, उसके सख्तियों से खुद को बचाना है और अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। इसके पीछे हिकमत क्या है मालूम? पहले तुम अपने घरों को सुधार लो, पहले तुम खुद सुधरो, अपने घर वालों को सुधार लो, अपने घर को सुधार लो, तब जाकर तुम्हारा मुआशिरा भी सुधरेगा, तुम्हारा मुआशिरा भी सुधरेगा, सोसाइटी भी सुधरेगी, तुम्हारे आसपास वाले भी सुधरेंगे और तुम्हारी इज्जत करने वाले बनेंगे, तुम्हारी कदर करने वाले बनेंगे। कोई भी दिन के बारे में उफ नहीं बोलेगा, कोई भी कुरान के बारे में गलत नहीं बोलेगा, कोई भी नबी के बारे में गलत बातें नहीं बयान करेगा।
लेकिन आज देखते हैं हालात कैसे हैं। आज मुसलमान कुरान को ज्यादा नहीं जानता जितना गैर जानता है। जितना गैर लोग कुरान को जानते हैं, जितना गैर लोग कुरान को पढ़ते हैं, आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ रहा है। जिल्लत है ये, रुसवाई है ये, अल्लाह की तरफ से जलील है, अल्लाह की तरफ से अजाब है ये। मुसलमान क्यों बदनाम हो रहा है, मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम कुरान को छोड़ दिया, अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, अल्लाह ताला हमको जलील बना दिया। मोहतरम हजरात, कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, कुरान को समझना है, कुरान को घरों में भी पढ़ना है, एक दूसरे को सुनाना भी है, सिखाना भी है और दूसरों को समझाना भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उतरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लोगों को समझाते गए और लोगों को करीब करते गए और इस्लामी माहौल बनता गया, बिगड़ा हुआ मुआशिरा सुधरता गया। अल्लाह तबारक व तआला तुमको बुलंदी पर लेने का एक चीज अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में रखा, वो क्या है? कुरान है। तुम्हें इसके जरिए से मुआशिरे को सुधारो, इसके जरिए से माहौल को सुधारो, कुरान के जरिए से। ये अल्लाह का कलाम कहां से आया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऊपर से आई हुई किताब है ये, ऊपर से आई हुई, नाजिल हुई, ऊपर से आई। जो इस किताब को पकड़ेगा वो क्या होगा? ऊपर होगा। अब एक रस्सी है, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में पानी लेना है और रस्सी डालते हैं, बॉडी में क्या है, एक डालते हैं, डोल डालते हैं और उसके बाद रस्सी हमारे हाथ में है। वो चीज को हम लेना बोले तो ऊपर खींचना है। तो ऊपर से आई हुई किताब हम तुम्हारे हाथ में रखे, हम कुरान तुम्हारे हाथ में रखे, हम कुरान तुम्हारे लिए उतारा, हम कुरान तुम्हारे समझने के लिए उतारा, हम कुरान के रास्ते पर चलने के वास्ते तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है हम लोगों ने। और तुम ये ऊपर से आई किताब को अगर तुम ले लोगे, उसको पकड़ोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? नाम ऊपर होगा, क्या होगी? बुलंद होगी, तुम्हारा मर्तबा भी ऊंचा होगा और हम तुम्हारी कदर कराएंगे दुनिया के अंदर। आज हमने ऊपर से आई किताब को छोड़ दिया तो हम कैसे हो गए? पूरे नीचे ही हो गए। अगर पकड़े हुए होते तो हम भी सर बुलंद होते थे, हमें भी सर बुलंद होते थे। आज मुसलमान भी इज्जत वाला होता था, आज मुसलमानों की भी कदर होती थी, आज मुसलमानों का एहतराम भी होता था। लेकिन आज कोई किसी का एहतराम नहीं करता। मुसलमान बोले तो नीचे ऊपर देखता है, मुसलमान बोले तो कदर नहीं करता, मुसलमान बोले तो ये कम निगाह से देखता है। मोहतरम हजरात, ये हालत कौन ला लिए बोलो? ये हालत हमें चला ली, ये हालत दूसरे नहीं लाए, ये हालत दुश्मना नहीं लाए, उनको दुश्मना हमें अपने ऊपर बना लिए। कैसा बना लिए? हम खुद बिगड़ के, हम खुद सुधरना को, हम खुद इस्लाम के माहौल में ना होकर हम क्या है, उनके मुंह का निवाला बने, हमें उनके मुंह के शिकार बने। आज वो हमारे दुश्मन बैठे और दीन के दुश्मना, मुसलमानों के दुश्मना बनकर क्या है, आज वो लोग दुश्मन जालिम बन के हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। ये उन लोगों के तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह हमें आजमा रहा है। ये हमारे हाथों का नतीजा है, ये हमारे हाथों का नतीजा है, ये हमारे करतूतों का अमल है। ये हमारे अमल की वजह से अल्लाह ताला ने हमको, हमारे माहौल को, हम पर जालिमों को मुसल्लत किया है, आजमात है अल्लाह ताला। मेरी किताब के रास्ते पर तुम्हें नहीं आए, मैं तुम्हें जलील कर दूंगा। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम्हें अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम बुलंद होगे। तुम्हें रस्सी छोड़ डाले तो क्या हो जाती? गिरे जाती। एक रस्सी है, पकड़ो, ऊपर ले लेंगे, ऊपर खींच लेंगे। तुम रस्सी को छोड़ दिए तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो कुरान भी तुम्हारे लिए एक रस्सी है। वो रस्सी कहां है? जन्नत तक है। वो कुरान जो है ऊपर से आई जन्नत से, नीचे आई तुम्हारे लिए, तुम सुधरने के लिए, तुम सुधारने के लिए, तुम माहौल को सुधारने के वास्ते हम नबी के जरिए से दिया। और वो जो चीज थी उसको तुम्हें छोड़ दिए तो तुम क्या हो गए? गिर गए, जलील हो गए, बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला इस तरह से कर दिया। अल्लाह ताला आजमा रहा है, फिर भी हमें सुधरती ही क्या? नहीं सुधरती। अब तो भी अकल आती है? नहीं आती ही। अब तो भी नमाजों की पाबंदी करती ही? नहीं करती ही। अब तो भी दीन के रास्ते में चलने की फिक्र करती ही? नहीं करती ही। अब तो भी दीन का काम करेंगे, भलाई की दावत देंगे, क्या तो भी फिक्र है? नहीं। कितने खोत है तो भी मेरे व्यापार की फिक्र मैं करना,
मेरे व्यापार की फिक्र मैं करना, मैं दुनिया बनाने की फिक्र करता हूं, मैं दुनिया को बनाने की फिक्र में लगा हुआ हूं, लेकिन दीन के बारे में फिक्र नहीं करोगे तो ऐसा ही मुआशिरा बिगड़ता जाएगा। मुआशिरा बिगड़ गया तो तुम भी बिगड़ गए, और तुम भी बिगड़ गए तो तुम्हारे घर के हालात भी बिगड़ते जाएंगे। मोहतरम हजरात, इसीलिए कुरान में अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन नसीहत किया है, बेहतरीन नसीहत। वखरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाकिमना सलात व आतीना ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूला। औरतों के ताल्लुक से अल्लाह क्या फरमाते हैं? औरतों के ताल्लुक से अल्लाह क्या फरमाते हैं? तुम घरों में रुकी रहो, बाजारों में मत आओ, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, तुम्हारी कदर कोई नहीं रखेगा, और एक दूसरे क्या है, तुमको नीचे से ऊपर तक देखेंगे। तुम घरों में रुकी रहो, नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, अल्लाह के रसूल की इताअत करती रहो, अल्लाह के हुक्मों पर चलती रहो, इसमें तुम्हारे लिए खैर है बोल के अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा है। लेकिन आज ज्यादा बाजार में, ज्यादा माहौल में कौन नजर आते हैं? औरतें नजर आते हैं, औरतें नजर आते हैं, बच्चियां नजर आती हैं, लड़कियां नजर आती हैं हमारे आंखों के सामने। नहीं, घर में इस्लामी माहौल नहीं, इस्लाम का रिवाज नहीं, तरीका नहीं, समझा लेने का नहीं। औरतें बाहर बेपर्दगी के साथ घूम रही हैं, घरों के बाहर बेपर्दगी के साथ बैठती हैं, बाजारों में बेपर्दगी के साथ आती हैं। औरत की इज्जत कहां रही? अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें इज्जत है बोले तो उसमें इज्जत है, अगर तुम्हें इससे हटकर तुम्हें अगर क्या तो भी करेंगे तो उसमें इज्जत नहीं बोल के अल्लाह खुद बोल दिया। अब इसीलिए बेपर्दगी के साथ जाएंगे तो क्या होगा? औरत की इज्जत लूटी जाएगी, औरत को नीचे से ऊपर तक देखा जाएगा। आज ऐसा ही हालतें हैं, आज ऐसी ही हालतें हैं। हमको सुधारने की जरूरत है, हमको सुधारने की जरूरत है, घर के माहौल को बदलाने की जरूरत है, अड़ोस पड़ोसियों को दीन की दावत देने की जरूरत है। ये उनके वास्ते नहीं, बल्कि हमें अपने आप को बचाने के वास्ते, अपने आप को आगे चलकर नुकसान के हालातों से बचाने के वास्ते हमें खुद उस पर अमल करना, और हमारे माहौल में वो चीजों को लाएंगे तो मुआशिरा भी सुधरेगा, घर का माहौल भी सुधरेगा, और हमारी नौजवान नस्ल भी सुधरेगी। वरना हम ऐसे ही रहेंगे तो अल्लाह के तरफ से अजाब आता रहेगा, अल्लाह के तरफ से जालिमा बैठते रहेंगे, अल्लाह के तरफ से मुसलमानों के दुश्मना पैदा होते ही रहेंगे, और हम अपनी जिंदगी को सुधारने वाले नहीं बन सकते। इसलिए इस्लाम के माहौल में आओ, इस्लाम के तरीके पर चलो, अल्लाह और उसके रसूल के हकामात पर अमल करो, और घरों के अंदर दीन की तालीमात करते रहो, और घरों में कुरान की तिलावत करते रहो। तब जाकर क्या है, घर भी सुधरेगा और माहौल और मुआशिरा भी सुधरता रहेगा। अल्लाह रब